Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series, and we will be revising the complete concepts of the chapter through MCQs. And better topic for this lecture is alcohols, phenols and ether. So let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to this channel so that you can get more videos on MCQs. It will help you to revise the topic thoroughly. All right. So beta, in the chapter of alcohol, phenol, ether, already two topics have been covered in previous videos, that is alcohols and phenols. You have learnt many reactions on alcohols, you have learnt few mechanisms, particularly the mechanism for dehydration of alcohol in which carbocation is the intermediate, and how to distinguish between 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols. Apart from that, in the chapter of phenol, many useful compounds of derivatives of salicylic acid and aspirin, methyl salicylate, phenyl salicylate, etc. And some dyes are produced from phenol, acidic nature of phenol, how to arrange the given compounds in increasing order of acidity, all that you have learnt in previous lectures, right? So beta, in this lecture the main focus is on ether. Diethyl ether particularly is a volatile compound, very good organic solvent in laboratory as well as in industry. And ethers are having low boiling point than alcohols because ethers cannot form a hydrogen bond. They are Lewis bases, oxygen has two lone pairs on it, and they are not acidic in nature, they can't lose H+. Apart from that, they undergo, if the ether is aromatic, then they undergo electrophilic substitution reactions. So in electrophilic substitution, it will be orthopara director or meta director. This thing we have to learn from these questions. So let's start with the first question. The first of all, the question is, an ether is more volatile than alcohol having the same molecular formula. It is due to, ईथर बेटा ज्यादा वोलाटाइल है, ये बोला गया है ईथर इज मोर वोलाटाइल. क्या रीजन है इसके वोलाटाइल होने का? ऑप्शंस आर डाइपोलर करेक्टर ऑफ ईथर, alcohols having resonance structures, intermolecular hydrogen bonding in ether और intermolecular hydrogen bonding in alcohols. तो देखिए ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता. ईथर ज्यादा वोलाटाइल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है. सी ऑप्शन में तो लिखा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर, दैट इज रॉन्ग. सो बेटा एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. वन एल्कोहल इज अटैच्ड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, बट ईथर्स के अंदर इस तरह से एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है. ROR इज ईथर, नो एच बॉन्डिंग फॉर वन ईथर मॉलिक्यूल टू द अदर. एज अ रिजल्ट जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो मॉलिक्यूल अलग अलग रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं. सो दे आर लेस, they have less boiling point and hence they are more volatile. जल्दी से इनके वेपर्स बन जाते हैं और आपका आंसर बनता है कि ये ज्यादा वोलाटाइल क्यों है. आंसर इज डी ऑप्शन. इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में होती है, ना कि ईथर में. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Excess of ethanol when heated with concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin, the compound obtained is. जब आप इथेनॉल को ट्रीट करते हो विद सल्फ्यूरिक एसिड, C2H5OH इथेनॉल, ठीक है, इसको हम ट्रीट कर देंगे विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या प्रोडक्ट आता है? टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है. आपको टेम्परेचर दिया गया है 413, देन आंसर इज diethyl ether. Two molecules of ethanol will join and diethyl ether will be produced. देखिए अगर ये टेम्परेचर हाई हो जाता है बेटा, लेट्स से कि यही रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम समझ लो 443 केल्विन पे करते हैं, फिर आंसर ईथर नहीं आता, फिर एल्कीन प्रोडक्ट आता है. डिहाइड्रेशन तो दोनों जगह में हो रही है, बट फर्स्ट केस में वाटर जो बाहर आ रहा है वो 2 मोल इथेनॉल से 1 मोल वाटर बाहर आ रहा है. सेकंड केस में क्या हो रहा है? आपके पास रिएक्टेंट तो सेम है, इथेनॉल ही है, बट एक ही मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल से वाटर बाहर आता है और एल्कीन बनती है. हाई टेम्परेचर पे जाके एल्कीन बनेगी, लो पे एल्कीन नहीं ईथर बनेगा. तो अब हमारा क्वेश्चन बेटा 413 पे है,
excess of ethanol treated with sulfuric acid at 413 Kelvin, then the answer is ethoxyethane. ये कंपाउंड को इथॉक्सीइथेन कहते हैं. डाई इथाइल ईथर का IUPAC नेम है इथॉक्सीइथेन. ठीक है, देखो अब मैकेनिज्म देखिए किस तरीके से ये हमारे पास ईथर प्रोडक्ट आएगा. स्टार्टिंग मटेरियल है इथाइल अल्कोहल C2H5OH. इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम सबसे पहले इस अल्कोहल को प्रोटोनेट कर देंगे. एक पॉजिटिव चार्ज लगा दो. दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल. ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है फर्दर ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर देता है. न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा ऑन द सेकेंड मॉलिक्यूल. एक इथेनॉल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा इथेनॉल हमने ऐसे लिख देना है. एंड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के साथ आप ये पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करोगे. एज अ रिजल्ट वी कैन राइट इट इंटरमॉलिक्यूलर अटैक. इंटरमॉलिक्यूलर अटैक. अब इनको जोड़ देना है और देखो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें आपके पास CH3 CH2 एंड ऑक्सीजन विद ए पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन एंड देन CH2 CH3. तो दो मॉलिक्यूल्स को हमने जोड़ दिया है और साथ में आपके पास प्रोटोनेटेड ईथर प्रोडक्ट आ गया. प्रोटोनेटेड ईथर इज प्रोड्यूस्ड, राइट. फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन दिखाएंगे इन द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में H+ बाहर निकल जाएगा. H+ को प्रोटॉन कहते हैं. ये स्ट्रक्चर अब हम लेफ्ट पे फिर से लिखेंगे. ये जो अभी अभी सेकेंड स्टेप में स्ट्रक्चर बना है उसको फिर से लिख के आप लॉस ऑफ H+ दिखाओगे. H+ सेपरेट कर दिया और रिमेनिंग आपके पास डाईइथाइल ईथर बना है. ये जो डाईइथाइल ईथर है बेटा दिस इज नथिंग बट इथॉक्सीइथेन. डाईइथाइल ईथर और इट इज कॉल्ड एज इथॉक्सीइथेन. इन दिस वे अगर एल्कीन बनाना हो तो फिर ऐसे नहीं मैकेनिज्म होता, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अटैक नहीं होता. आप एल्कीन का फॉर्मेशन भी देख लो. लेट मी राइट द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन सेपरेटली. हमारा आंसर तो ईथर आ गया. एल्कीन कब बनता है? अगर टेम्परेचर इससे भी हाई हो. फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन आपने अल्कोहल के चैप्टर में भी देखा था. फर्स्ट स्टेप तो सेम है. फर्स्ट स्टेप के बाद जब सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है तो बेटा ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इसमें से कार्बोकेटायन बन जाएगा. इट विल रिजल्ट इनटू अ कार्बोकेटायन. ये प्रोटो या ऐसा करते हैं, मैं आपको फर्स्ट स्टेप भी दिखाई देती हूं. पहले फर्स्ट स्टेप लिखते हैं फिर हम कार्बोकेटायन फॉर्मेशन दिखाएंगे. फर्स्ट स्टेप में आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल एंड H+ इज एडेड ऑन द अल्कोहल. H+ अटैच हो जाएगा. यू विल हैव OH+ and then OH2 बन गया ना. it is called as protonated alcohol. then it will lose water. प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से माइनस वाटर कर देंगे, कार्बोकेटायन बनेगा. कार्बोकेटायन का नाम है इथाइल कार्बोकेटायन. गॉट इट. इथाइल कार्बोकेटायन फर्दर फिर H+ लूज करेगा इन द नेक्स्ट स्टेप. ये स्टेप डिफिकल्ट स्टेप था, यही वाला स्लो स्टेप था. उसके बाद ये कार्बोकेटायन जो है आप इसमें से -H+ करिए और प्रोडक्ट आएगा इथीन. H+ इज सेपरेटेड आउट. बट ये कब होता है? ये 443 केल्विन पे होता है. लो टेम्परेचर पे तो ईथर ही बनता है. अल्कोहल से आपने स्टार्ट किया था. पहले आपके पास फर्स्ट स्टेप में ही अल्कोहल के ऊपर एक H लग गया था. उसके बाद वो जो मॉलिक्यूल है वो जाके अटैक करता है सेकेंड के साथ, तो आपका प्रोटोनेटेड ईथर बना, साथ में वाटर सेपरेट हुआ, लॉस ऑफ H+ से प्रोडक्ट आएगा. तो 413 केल्विन के ऊपर ये प्रोडक्ट आना है. तो दो चीजें याद रखनी है. 443 होगा तो एल्कीन बनेगी, बट अगर 413 है तो बेटा ईथर बनता है. ये डाईइथाइल ईथर है, ये जो हाईलाइट किया है, और इसी को बेटा IUPAC में इथॉक्सीइथेन बोला जाता है. एज अ रिजल्ट आपका आंसर है C ऑप्शन. गॉट इट.
Coming to the next question, question number 3. Anisole can be prepared by the action of methyl iodide on sodium phenoxide. The reaction is called as anisole. ये structure होता है. Methoxybenzene is called as anisole. मिथॉक्सीबेंजीन को बेटा एनिसोल कहते हैं. आपने किस किस से रिएक्शन प्रोडक्ट लेके आना है? फिनॉक्साइड सोडियम एंड मिथाइल आयोडाइड. लेट्स राइट मिथाइल आयोडाइड एंड देन सोडियम फिनॉक्साइड. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर सोडियम फिनॉक्साइड. देयर विल बी लॉस ऑफ NaI. ये रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस. विलियमसन साइंटिस्ट ने ईथर्स को बनाने का ये तरीका बताया था हमें. ये एनिसोल बन रहा है, साथ में NaI इज रिमूव्ड आउट एंड दिस इज एल्काइल हैलाइड. दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल. सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल को सोडियम फिनॉक्साइड कहा जाता है. गॉट इट? तो एनिसोल आपके पास प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड एज विलियमसन्स सिंथेसिस. This reaction is Williamson synthesis. Hence, the answer is option A. फिटिक रिएक्शन तो बेटा एराइल हैलाइड में देखा था, वो एराइल हैलाइड का है. वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का है. इटार्ड रिएक्शन अलग है. इटार्ड रिएक्शन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट एल्डिहाइड कीटोन में सेकेंड सेमेस्टर में आपको दिखेगा. यू कैन सी इटार्ड्स रिएक्शन. इटार्ड्स रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल होता है टॉल्वीन. मिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड एज टॉल्वीन. इसको ऑक्सीडाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड. CrO2Cl2. क्रोमाइल क्लोराइड एक गैस है, उसकी प्रेजेंस में ये कार्बन जो था ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बनता है एंड एसिटिक एनहाइड्राइड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. इटार्ड्स रिएक्शन का रिएक्टेंट टॉल्वीन है एंड प्रोडक्ट इज बेंजाल्डिहाइड. गॉट इट? सो इटार्ड रिएक्शन अभी इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है. एनीवे हमारा आंसर बन रहा है विलियमसन सिंथेसिस. ईथर प्रेपरेशन का मेन मेथड है विलियमसन सिंथेसिस. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस. देखो अब विलियमसन सिंथेसिस का एक लिमिटेशन है. सारे के सारे ईथर इससे नहीं बनेंगे. वैसे ही अच्छा मेथड है ईथर बनाने का, बट कुछ कुछ ईथर्स इससे नहीं भी बनते हैं. वो कौन से होते हैं? फर्स्ट इज मिथॉक्सीबेंजीन. मिथॉक्सीबेंजीन तो बेटा अभी अभी बनाया, एनिसोल बनाया था ना, ये इसी को एनिसोल कहते हैं, ए ऑप्शन को. तो ये तो बनता है. बी ऑप्शन इज बेंजाइल पैरा नाइट्रोफिनाइल ईथर. लेट मी ड्रॉ बी ऑप्शन. बेंजाइल, ये बेटा बेंजाइल है, 6 कार्बन की रिंग, फिर उसके ऊपर 7th कार्बन CH2 को बेंजाइल कहते हैं. बेंजाइल पैरा नाइट्रोफिनाइल. ये आपने फिनाइल जोड़ दिया और पैरा पोजीशन पे आप नाइट्रो लगा दोगे. और ईथर है तो सेंटर में ऑक्सीजन भी आनी थी. सेंटर में ऑक्सीजन और फिर ये स्ट्रक्चर. गॉट इट? सो ये आपके बी ऑप्शन का स्ट्रक्चर है. अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सा बनता है कौन सा नहीं. पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. सी ऑप्शन इज मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर. एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाएंगे, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, और एक तरफ मिथाइल. दिस इज मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर. और डी ऑप्शन क्या है? डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर. ये आपका डी ऑप्शन. 2 टर्शरी ब्यूटाइल लगाने हैं, दोनों तरफ, लेफ्ट पे भी राइट पे भी. तो ये वाला जो डी ऑप्शन है ना बेटा, ये ईथर नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता डी ऑप्शन से? विलियमसन सिंथेसिस जो है वो क्यों ये वाला ईथर नहीं बना सकता? देखो अगर मुझे डी ऑप्शन बनाना है, लेट मी डिस्कस डी ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. डी अगर प्रोडक्ट बनाना है तो आप क्या लोगे? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू टेक सोडियम सॉल्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. एक तरफ RX और एक तरफ सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल लेना पड़ता है, तब जाके विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनते हैं. तो अगर आप ये दोनों को कंबाइन कराने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम क्या आती है? इट इज ए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड. 3 डिग्री के अंदर बेटा लॉस ऑफ HCl हो जाता है. हम तो चाहते हैं कि ये सब्सटीट्यूशन होनी चाहिए. यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, हम चाहते हैं ये नेगेटिव आके यहाँ पे अटैक करे और ईथर प्रोडक्ट मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है.
क्या होता है, लॉस ऑफ HCl, मतलब एलिमिनेशन ऑफ HCl टेक्स प्लेस। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, इसलिए आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता। सो आपका आंसर ये आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइलिन प्लस HCl। क्या प्रोडक्ट है, आइसोब्यूटीन और आइसोब्यूटाइलिन कहते हैं। ईथर नहीं मिलेगा आपको, बी ऑप्शन से रादर एल्कीन मिलेगी, बी नहीं डी ऑप्शन से। अब ए तो डिस्कस हो ही गया, ए से तो बन जा, विलियमसन सिंथेसिस से ए कंपाउंड तो बनता है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया ही था। लेट्स राइट फॉर बी ऑप्शन बेंजाइल पैरानाइट्रोफिनाइल ईथर, इसको डिस्कस करते हैं। ऑप्शन बी को बेंजाइल और फिर पैरानाइट्रोफिनाइल ईथर। इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, बेंजाइल क्लोराइड लेंगे, ये ले लिया मैंने बेंजाइल क्लोराइड, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, फिनाइल के पैरा पोजीशन पे। अच्छा ईथर बनाना है ना, तो आपको इधर लेना पड़ेगा, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा होना चाहिए एंड ONA। लेट मी राइट प्रॉपरली, ONA बेटा यहां लगाओ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, ये दो रिएक्टेंट हम लेंगे। ठीक है, ऐसा करने से ये डेल्टा पॉजिटिव के ऊपर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट अदर वे राउंड इज नॉट पॉसिबल। ऐसा करने से तो ये प्रोडक्ट आ रहा है, आपके प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूशन हो रही है और तुम्हें ईथर मिल रहा है। ठीक, अगर उल्टा कर दिया जाए, समझ लो कि हम चाहें कि ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल ले लें कि हम यहां CH2 के साथ ONA ले लिया और उधर मैंने क्लोरीन लगा दिया, देन प्रोडक्ट विल नॉट कम, तो ईथर नहीं बनेगा। क्या प्रॉब्लम है, ये बेटा एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड, नो विलियमसन सिंथेसिस, नो ईथर विल बी फॉर्म्ड, बिकॉज आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस इजिली, दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली। क्या प्रॉब्लम है, यहां कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड है। नाइट्रो हेल्प करता है कुछ हद तक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेल्प करता है, बट उससे बेटर है कि आप ये वाली ऑप्शंस ले लो ना, जिसमें कि क्लोरीन बेंजाइल के ऊपर लगा है, क्लोरीन को एरोमेटिक रिंग से ना ही जोड़ो। क्लोरीन को अगर आप एरोमेटिक रिंग से जोड़ोगे तो एराइल हैलाइड बनेगा, आप एल्काइल हैलाइड से प्रोडक्ट बनाओ, ना कि एराइल हैलाइड से। क्लियर? तो सी ऑप्शन देखते हैं, बी का डिस्कशन हो गया। सी ऑप्शन क्या था, कंपाउंड मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। इसके अंदर भी प्रोडक्ट तो आ जाएगा, बट एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन से आएगा, एक से नहीं आएगा। मिथाइल क्लोराइड और ये आपने लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सोडियम सॉल्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेने से हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, सी ऑप्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि यहां पे बेटा डेल्टा पॉजिटिव है कार्बन पे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, वो नेगेटिव आके यहां अटैक करेगा, ईथर आपको मिलेगा, साथ में NaCl मिलेगा। बट अगर सी वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने ऐसा कर लिया, लेट से कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया एंड we try to react it with sodium methoxide, then ether will not be formed। 3 डिग्री के अंदर तो ईथर बनता ही नहीं है, रादर एलिमिनेशन हो जाती है और आंसर एल्कीन बन जाता है। कौन सा एल्कीन बनेगा, आइसोब्यूटाइलिन। आपके रिएक्टेंट में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की एल्कीन बनती है बाय द लॉस ऑफ HCl। सो विलियमसन सिंथेसिस का ये लिमिटेशन है कि रिएक्टेंट्स ढूंढने पड़ते हैं, आपको चॉइस करना पड़ेगा कि एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट आता है और एक सेट से नहीं आता। सो डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर तो किसी भी सेट से नहीं आएगा। ठीक है, सो ए ईथर बन रहा है, बी बन रहा है, सी बन रहा है, बट डी ऑप्शन का ईथर पॉसिबल नहीं है टू बी प्रिपेयर्ड थ्रू दिस रिएक्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 5। ईथर्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग एल्काइल हैलाइड विद। ऑप्शंस आर, ईथर बनाना है बेटा, स्टार्टिंग मटेरियल एल्काइल हैलाइड है, ड्राई Ag2O और मॉइस्ट Ag2O और ड्राई ZnO और मॉइस्ट ZnO।
ठीक है, तो ईथर का प्रेपरेशन इस तरह से होता है, ROR आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर ईथर फ्रॉम एल्कोहल, नहीं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, क्वेश्चन ने एल्काइल हैलाइड दिया है, तो स्टार्टिंग मटेरियल RI और RCl कुछ भी ले लो, RX लिख देते हैं। ये RX के ऊपर जब ड्राई कंडीशन में Ag2O ऐड होता है, in dry condition if Ag2O is added then you will get ether, ROR is the product and AgX will be removed out, 2 मोल ईथर के कंबाइन करेंगे और इस तरीके से 2 मोल AgX बन जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O ले लेते हैं, अगर Ag2O मॉइस्ट कंडीशंस में ले लिया, फिर प्रोडक्ट बेटा क्या आ जाता है, देन यू विल गेट एल्कोहल एंड AgX। फिर आपको, क्योंकि जो ड्राई की जगह मॉइस्ट लिया ना Ag2O, तो वो AgOH होता है, वो AgOH है, तो फिर आंसर एल्कोहल, फिर ईथर नहीं बनता। गॉट इट? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ईथर बनाना है तो ड्राई कंडीशन में रिएक्शन करना पड़ेगा विद सिल्वर ऑक्साइड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 6। When vapors of ethyl alcohol are passed under pressure over heated Al2O3 at 523 Kelvin, then the product is, आपने रिएक्शन किसका किया, एल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल लेते हैं C2H5OH, इसके आप वेपर्स पास करते हो ओवर Al2O3। ईथर बनाने के लिए जरूरी नहीं है एसिडिक कंडीशन यूज करनी है, हम एल्कोहल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ईथर बनता है, बट अगर एसिडिक कंडीशन अवॉइड करनी है तो एल्यूमिना भी यूज कर सकते हैं। फिर हाई टेम्परेचर चाहिए, ईथर बनता था 413 केल्विन पे जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला, बट अगर Al2O3 डालोगे तो और भी हाई टेम्परेचर 523 एंड हाई प्रेशर आर रिक्वायर्ड। हाई प्रेशर कंडीशन में ये जो अल्कोहल है ये ईथर में कन्वर्ट होता है, 2 मोल अल्कोहल एंड वाटर इज सेपरेटेड आउट, इस तरीके से प्रोडक्ट आएगा। अंडर प्रेशर क्वेश्चन ने ऑलरेडी गिवन था, दे रखा था, टेम्परेचर आपको लर्न करना है 523 केल्विन। अब कौन सा ईथर बनेगा, ऑप्शंस हैं डाई मिथाइल और इथाइल मिथाइल और डाई इथाइल। लेट मी राइट, रिएक्शन ऑलरेडी लिख दिया बेटा, ये प्रोडक्ट बनेगा डाई इथाइल ईथर। आपके रिएक्टेंट के अंदर 2 कार्बन थे, 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे तो 4 कार्बन इन द प्रोडक्ट एंड डाई इथाइल ईथर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ethoxyethane. In IUPAC it is ethoxyethane. In common system it is diethyl ether. Answer is option C. Clear? Let's come to the 7th question now. 7th question देखो, in the following reaction ether का बेटा reduction कर रहे हैं with HI and red phosphorus. Then what is the compound product X? X क्या बनेगा? Ether with HI red and red phosphorus. Keep in mind HI and red phosphorus, it is a very good reducing agent, very good reducing agent। ऑर्गेनिक में ये बहुत अच्छा reducing agent है, और जब ये रिडक्शन करता है तो प्रोडक्ट में बेटा एल्केन आता है, ये याद रखना पड़ेगा। चाहे आप स्टार्ट करते हो विद एल्काइल हैलाइड, चाहे आप स्टार्ट करो विद अल्कोहल, या आप हो सकता है कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, या आप किसी एल्डिहाइड से रिएक्शन स्टार्ट करो, या इट कैन बी अ कीटोन ऑल्सो। तो हर बारी जो HI रेड फॉस्फोरस आप डालोगे तो आंसर में एल्केन आएगा विद सेम नंबर ऑफ कार्बन्स व्हेन यू विल ऐड HI एंड रेड फॉस्फोरस। तो ये याद रखना है, सिर्फ ईथर का रिएक्शन नहीं है, आई कैन मेंशन ईथर ऑल्सो इन दिस लिस्ट। अगर ईथर है या कीटोन है या एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब जब आपने HI रेड फॉस्फोरस डाला, ऑल ऑफ देम विल गिव एल्केन एज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन। इन सब की रिडक्शन से एल्केन बनता है। अब हमारे क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग मटेरियल देखो क्या दे रखा है, डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर का स्ट्रक्चर लिखेंगे हम C2H5O C2H5। It is treated with HI and red phosphorus. Product is alkane and कार्बन आपके रिएक्टेंट में 2 थे, 2 ही कार्बन का प्रोडक्ट आएगा, बट 2 मोल प्रोडक्ट आएगा।
and water will be removed out. I2 will also be the side product. Very good reducing agent for organic reactions. So answer है एल्केन बनेगा. तो कौन सा एल्केन? ब्यूटेन बन रहा है क्या? कार्बन तो रिएक्टेंट में 4 थे, बट दोज 4 कार्बन्स वर नॉट अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन. ये देखो हमारे रिएक्टेंट में 2 कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर 2 कार्बन. तो इथेन आंसर आ रहा है. इथेन इज द प्रोडक्ट. 2 mole ethane will be produced from 1 mole of ether. As a result, answer is C option. Coming to question number 8. 8th question है, which of the following will be obtained by keeping ether in contact with air for a long time? ईथर को एयर में नहीं रख सकते. अगर आप ईथर और एयर को रखते हो, ईथर का बॉटल अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. सो ईथर्स get oxidized by air to produce hydroperoxides. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? हम डाईइथाइल ईथर का स्ट्रक्चर लिखेंगे. ये बेटा डाईइथाइल ईथर है. ए ऑप्शन में जो कंपाउंड है वो हाइड्रोपेरोक्साइड है. इसको जब एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन होती है तो आपके पास ये सिचुएशन अराइज होती है कि आपने CH बॉन्ड को ब्रेक कर देना है. जो सेंटर वाली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड कार्बन था उसका CH बॉन्ड मैंने अलग करके उसके ऊपर ऑक्सीजन्स लगा दी. O2 इनकॉर्पोरेट कर दिया है. दोनों ऑक्सीजन के एटम बेटा इनकॉर्पोरेट कर दिए. ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है. दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोपेरोक्साइड. तो स्ट्रक्चर मैच करते हैं. हमारे पास ए ऑप्शन में स्ट्रक्चर करेक्ट वाला है. 2 ऑक्सीजन, यहां का जो CH बॉन्ड था ना उसको ब्रेक करके दोनों ऑक्सीजन ऐड हो गई हैं. एज अ रिजल्ट CH2 यहां पे था. CH2 में से एक CH वैसे ही लगा है, बट अदर CH बॉन्ड हैज ब्रोकन एंड 2 ऑक्सीजन के एटम वहां फिट कर देने. एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोपेरोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच्ड है पेरोक्साइड के ऊपर. हाइड्रोपेरोक्साइड ऑफ डाईइथाइल ईथर. गॉट इट? सो ए ऑप्शन इज योर आंसर. राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 9. 9th क्वेश्चन देखिए. You are given Grignard reagent methyl magnesium bromide and arrow के ऊपर है some ester. It is called as ethyl acetate. ये जो एस्टर लिख रखा है इसका नाम बेटा इथाइल एसीटेट. ठीक है. इथाइल एसीटेट के साथ रिएक्ट करेंगे और कंपाउंड ए क्या बनता है वो देखेंगे. फिर जो भी ये बनेगा उसको सोडियम से रिएक्ट करके समथिंग कॉल्ड बी इज प्रोड्यूस्ड एंड बी इज देन ट्रीटेड विद इथेनॉल टू प्रोड्यूस C. तो देखो आप रिएक्शन क्या है. लेट्स स्टार्ट विद CH3MgBr. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट X दिया है तो हम भी X लिख लेते हैं, बट ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन कुछ भी हो सकता है. ठीक है. CH3MgX एंड इट इज टू बी ट्रीटेड विद इथाइल एसीटेट. ये है इथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर. आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, सेम स्ट्रक्चर लिख दिया है. ग्रिग्नार्ड प्लस एस्टर से किस तरह रिएक्शन होता है ये पहले ही लिख देते हैं हम. ग्रिग्नार्ड प्लस एस्टर, ये जब मिलते हैं ना बेटा पहले कीटोन बनेगा, फिर वो कीटोन फर्दर ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कर जाता है एंड 3 डिग्री अल्कोहल, फिर हमें आंसर मिलता है. ये सीक्वेंस पहले से पता हो तो इजी रहता है. फिर हम पोलैरिटी लगाएंगे, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है वो देखेंगे, प्रोडक्ट आएगा. बट पहले से माइंड में होना चाहिए कि कीटोन आएगा. किस तरह आएगा वो देखो. ये है आपका कार्बन जिसके ऊपर है नेगेटिव, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है. मैग्नीशियम इज पॉजिटिव एंड कार्बन इज नेगेटिव. एंड देन वी हैव टू अटैच सम पोलैरिटी ऑन एस्टर ऑल्सो. एस्टर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव. गॉट इट? सो कार्बन पे पॉजिटिव लगा दीजिए और ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज. एंड अटैक कैसे होता है? ये जो है ना R ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड, ये बेटा अटैक करता है ऑन दिस कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक. एज अ रिजल्ट ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा. एस्टर से स्टार्ट कर रहे हैं लिखना.
एस्टर की ऑक्सीजन पे मैग्नीशियम जुड़ गया, ये आपका ऑक्सीजन जाके डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करता है, तो उसके बाद CH3 और एक की जगह 2 CH3 हो गए, OC2H5। दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। ये जो एडिशन प्रोडक्ट है, फिर इसमें से आप लॉस ऑफ MgOC2H5X का आप लॉस शो करोगे। ये चीजें बाहर निकाल दो, ये दिस थिंग विल गो आउट एंड एरो ऐसे लगना चाहिए कि जब ये OC2H5 बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मिथाइल के साथ जाएंगे, और जो ये वाला बॉन्ड था यहां ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड था, उसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। एज अ रिजल्ट हम ये शो करते हैं कि यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और कीटोन आंसर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने मूव कर दिया, आपके पास प्रोडक्ट आएगा कीटोन विच इज कॉल्ड एज एसीटोन। ये चीज माइनस हो गई, प्लस MgOC2H5X। अब एक बारी फिर से कीटोन और ग्रिग्नार्ड अब फिर से सेम रिएक्शन वेसल में है, तो रिएक्ट करेंगे CH3MgX। कार्बन ऑफ कीटोन इज पॉजिटिव बट कार्बन ऑफ ग्रिग्नार्ड इज नेगेटिव, एंड इन दिस वे रिएक्शन के अंदर आपने न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो कर देना है। एज अ रिजल्ट फिर से एडिशन प्रोडक्ट बनेगा CH3COMgX एंड CH3। अब 3 हो गए, ये एडिशन प्रोडक्ट है, इसको भी ब्रैकेट में लिखिए। देन लॉस ऑफ MgOH एंड X, जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तब ये लॉस होता है। वी कैन राइट इट क्लियरली, MgOH एंड X। ये कब होता है? जब वाटर डालते हैं इन एसिडिक मीडियम। ऊपर भी लिख देते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस करने पे ये लॉस होता है बेटा। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास अब आंसर आ जाएगा, ये आप रिमूव कर दो, दिस थिंग विल गो आउट। ठीक है, अब हमारा आंसर आ रहा है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कहने का मतलब हमारा ए कंपाउंड हमें मिल गया। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में यही बोला गया था ना कि एक एस्टर और एक ग्रिग्नार्ड को कंबाइन करो, तो ए क्या बना? ए आ गया आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट बोला गया है कि अब इस ए को, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अब इसको सोडियम मेटल से रिएक्ट करना है। फिर हम इसको सोडियम से रिएक्ट करेंगे, यू विल गेट CH3CONA एंड CH3, सोडियम सॉल्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब कंपाउंड बी बन गया। बी के बाद फर्दर क्या करने को बोला गया है? यू आर आस्क्ड टू रिएक्ट इट विद इथेनॉल। अब इसको इथेनॉल से ट्रीट करिए, ये बी कंपाउंड इट विल बी ट्रीटेड विद C2H5OH। ये अब विलियमसन सिंथेसिस हो रहा है। विलियमसन सिंथेसिस में एक अल्कोहल होता है और दूसरा उस अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट होता है। आपका प्रोडक्ट आएगा CH3C एंड CH3 हेयर। तीनों CH3 मैंने साइड पे लगा दिए, एंड यू आर गेटिंग OC2H5। एज अ रिजल्ट ईथर इज प्रोड्यूस्ड। कौन सा ईथर बना है? टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बेटा किस ऑप्शन के अंदर है? बी ऑप्शन में। गॉट इट? सो बी ऑप्शन आपका आंसर, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये देखो, ये है टर्शरी ब्यूटाइल पार्ट, ये है इथाइल पार्ट। लास्ट स्टेप में विलियमसन सिंथेसिस था, फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन था एस्टर के साथ। उसमें कीप इन माइंड, जब जब ग्रिग्नार्ड को एस्टर से रिएक्ट करोगे पहले कीटोन बनेगा, फिर 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और हम रेकग्नाइज कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं ए कंपाउंड ये आया था, बी कंपाउंड ये आया था। आपका बी का स्ट्रक्चर ठीक से देखिए, बी वॉज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एंड डी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। डी नहीं, सी फाइनल आंसर है हमारा, सी कंपाउंड। दिस इज एन ईथर। Coming to the next now, question number 10. 10th question on our screen. In the reaction, एनिसोल दिया बेटा, ये रिएक्टेंट का नाम एनिसोल है। मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहते हैं। एनिसोल को बेटा HBr से रिएक्ट करना है, तो क्या प्रोडक्ट आएगा? HBr क्लीवेज कर देता है,
क्लीवेज ऑफ ईथर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कम से कम 4-5 क्वेश्चंस आएंगे क्लीवेज ऑफ ईथर पे, क्योंकि क्लीवेज ऑफ ईथर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एंट्रेंस और इंजीनियरिंग एंट्रेंस। यू विल गेट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, ऑब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर, सब जगह पे ईथर क्लीवेज विद HI एंड HBr एंड HCl इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो आपने क्या याद रखना है कि जब आप ईथर को रिएक्ट कराते हो विद HBr तो आंसर में एल्काइल हैलाइड आएगा, मतलब RBr एंड एल्कोहल। दो मॉलिक्यूल आएंगे ना, एक एल्काइल हैलाइड का और एक एल्कोहल का। अब हमें जो ईथर गिवन है हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यू आर गिवन OCH3 एनिसोल, गॉट इट। तो एनिसोल पे जब HBr का अटैक होना है तो Br कहां लगेगा? Br बेटा मिथाइल पे लगेगा एंड रिमेनिंग इज फिनोल। बी केयरफुल, आपका ये प्रोडक्ट आएगा, फिनोल अलग हो गया और मिथाइल ब्रोमाइड अलग हो गया। किस तरीके से रिएक्शन होता है वो देखिए। आपके पास लोन पेयर था, ईथर की ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था और Br नेगेटिव आके अटैच होना है, बट SN2 मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म लिखते हैं H plus will attached on the lone pair of oxygen first of all. We have OCH3 and H plus will be attached. As a result आपने लोन पेयर को H plus के साथ जोड़ दिया और ये एल्कोहल, ये बन गया प्रोटोनेटेड ईथर, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड H। अब बेटा ब्रोमाइड ने अटैक करना है और ब्रोमाइड वहां से अटैक करेगा जहां क्राउडिंग कम है। ब्रोमाइड का अब आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करोगे, ये नेगेटिव चार्ज जाके ये कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करता है। दिस इज Br नेगेटिव कमिंग फ्रॉम लेस क्राउडेड साइड। लेस क्राउडेड साइड से वो आके अटैक करता है। तो हमारे को Br जोड़ना है मिथाइल के ऊपर और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना है। एज अ रिजल्ट फिनोल अलग एंड मिथाइल ब्रोमाइड अलग। ये आपके क्वेश्चन का प्रोडक्ट, फिनोल इज कमिंग एंड मिथाइल ब्रोमाइड इज कमिंग, गॉट इट। तो क्या ऑप्शंस हैं? फिनोल एंड मिथाइल ब्रोमाइड है, एक है ब्रोमोबेंजीन, एक है फिर ब्रोमोबेंजीन एंड मिथेनॉल, और लास्ट में तो ईथर ही दिया है, उसको तो ब्रेक ही नहीं किया। तो आंसर बेटा ए बनेगा ना। फिनोल अलग करना है, मिथाइल ब्रोमाइड अलग करना है। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, ये SN2 है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिकुलर, जिसमें लेस क्राउडेड साइड से अटैक करना है, गॉट इट। तो लेस क्राउडेड साइड राइट वाली है जहां मिथाइल लगा, लेफ्ट पे तो मैंने लिखा था फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग में 6 कार्बन हैं, वहां से अटैक नहीं करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो 11th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ease of cleavage of ether linkage by hydrogen halides। cleavage of ether करना है with HI, with HBr, with HCl, ठीक है। तो आपको कंपाउंड्स दिए HI, HBr एंड HCl, सबसे क्लीवेज हो जाएगी, तीनों कर देंगे ये क्लीवेज। बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लीवेज, रेट ऑफ क्लीवेज ऑफ ईथर, ये होता है HI के अंदर फास्टेस्ट क्लीवेज होती है, क्योंकि HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें से आयोडाइड जल्दी से बाहर आएगा, I नेगेटिव आके अटैक करता है और प्रोडक्ट आता है आपके पास। सेम रिएक्शन ब्रोमाइड ने भी करना है, बट अगर HI डाल रखा है, पहले हम HI लिखेंगे फिर आयोडाइड अलग से दिखाएंगे। पहले बेटा HI, उसका पॉजिटिव H प्लस हम लोन पेयर पे अटैच करेंगे एंड यू विल गेट ROR एंड लोन पेयर एंड पॉजिटिव हाइड्रोजन H प्लस, ठीक है। फिर अब आयोडाइड का अटैक इजिली होता है, आयोडाइड आके आपको प्रोडक्ट देगा RI एंड ROH, RI एंड ROH। सो आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, आयोडाइड जल्दी बाहर आ जाएगा HI में से। तो आपके पास प्रोडक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन में HI फास्टर देन HBr देन HCl। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन,
फेनिटोल ऑन रिएक्शन विद HI। अब फेनिटोल दिया है, फेनिटोल होता है इथॉक्सी बेंजीन। फेनिटोल इज इथॉक्सी बेंजीन, मतलब OC2H5 लगेगा तो इसको फेनिटोल बोलते हैं। ये फेनिटोल आपने रिएक्ट करवाना है विद HI। लेट्स राइट द स्ट्रक्चर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये आपके रिएक्शन का रिएक्टेंट है, इसको हम HI से ट्रीट कराएंगे। आयोडाइड कहाँ लगाओगे आप? आयोडाइड आपने मिथाइल के साथ, सॉरी मिथाइल तो है ही नहीं, इथाइल के साथ अटैच करना है। SN2 मैकेनिज्म, अभी मैकेनिज्म पीछे वाले क्वेश्चन में किया भी था आपने कि पहले H+ अटैच होता है फिर आयोडाइड आएगा, बट आयोडाइड लेस क्राउडेड साइड से आएगा। तो आपने ये वाला बॉन्ड क्लीव करना है, आयोडाइड और मिथाइल को अटैच करेंगे, C2H5I इज द प्रोडक्ट। क्लियर? तो इन दिस मैनर क्लीवेज होती है, SN2 कंट्रोल्ड रिएक्शन है। कभी कभी SN1 भी होता है, बट फेनिटोल में कोई भी कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं है। देखो कार्बोकटाइन SN1 अगर होगा तो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट होगा, तो ना तो कार्बोकटाइन इथाइल का स्टेबल है ना ही फिनाइल का स्टेबल है, तो यहां रिएक्शन SN2 है। जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलती कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या चल रहा है, तब तक प्रोडक्ट्स गलत हो सकते हैं। सो SN2 मीन्स क्राउडिंग से डिसीजन होना है। क्राउडेड साइट कौन सी है? जहां एरोमेटिक रिंग है। जहां कम क्राउडिंग है वहां पे आपने आयोडाइड को अटैच करना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन, फिर से क्लीवेज आ रही है, व्हेन बेंजाइल फिनाइल ईथर, बेंजाइल और फिनाइल लगा देंगे और ईथर बना देंगे। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद HI इन द मोलर रेशियो 1:1, तो क्या प्रोडक्ट आएगा? देखो स्ट्रक्चर में एक साइड हम बेंजाइल रिंग और दूसरी साइड पे फिनाइल रिंग ये अटैच करेंगे और रिएक्शन करेंगे विद HI, ट्रीट इट विद HI। तो क्या प्रोडक्ट बनता है? आयोडीन बेटा हम कहां लगाएंगे? पहले मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? H+ को दिखाएंगे। H+ को आप इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैच करिए, तो ये स्ट्रक्चर बनता है रिंग, फिर CH2, फिर ऑक्सीजन, उसके ऊपर H+ जोड़ दिया। गॉट इट? तो बेटा अब क्या करना है? हमारा रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर हमने H+ लगा दिया। अब आयोडाइड ने आना है, पर SN1 रिएक्शन करेंगे। SN1 में कार्बोकेटाइन पहले बन जाता है, आयोडाइड बाद में आएगा। कार्बोकेटायन इज स्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल होता है फिर SN2 नहीं, फिर SN1 होता है। कार्बोकेटायन का नाम क्या है यहां? बेंजाइल कार्बोकेटायन। कैन आई से दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस? आपको दिख रहा है कॉन्जुगेशन रिंग के अंदर और बाहर पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। व्हेन इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, तो फिर कार्बोकेटाइन ही बनेगा। कार्बोकेटाइन के बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप, आयोडीन था या ब्रोमीन था? HI था ना, तो आयोडाइड का अटैक कराएंगे। I negative will do a nucleophilic attack and you will get your product. You have the aromatic ring, then CH2I प्लस दूसरा कंपोनेंट तो अलग हो ही गया, उसका जो दूसरा पार्ट था उसको हम यहां पे शो कर सकते हैं सेपरेट करके। फिनोल सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो एक आ रहा है बेंजाइल आयोडाइड और दूसरा आपको मिल रहा है फिनोल। बेंजाइल आयोडाइड एंड फिनोल, मतलब कि फिनोल ऑप्शन ए में 1 कंपाउंड है और बेंजाइल आयोडाइड 3rd कंपाउंड है। एज ए रिजल्ट आपका आंसर बनता है 1 and 3। 1 and 3 मीन्स ऑप्शन ए। गॉट इट? तो बहुत इंपॉर्टेंट था। आयोडीन आप कहां लगाते हो? आयोडीन आप वहां लगाइए जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है, क्योंकि रिएक्शन SN1 को फॉलो करेगा। SN1 और फिर कार्बोकेटाइन के लिए रेजोनेंस रीजन है स्टेबिलिटी का, इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। एज ए रिजल्ट आयोडीन वहीं लगेगी जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है। सो क्लीवेज ऑफ HI, क्लीवेज ऑफ ईथर विद HI हम डिस्कस कर रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। अनदर क्वेश्चन ऑफ ईथर विद HI, यू आर हैविंग मिथाइल इथाइल ईथर। ये आपको ईथर गिवन है, आपने HI डाल दिया, तो क्या प्रोडक्ट्स आते हैं? ऑप्शंस
दे रखे हैं अलग अलग, लेट्स राइट दी रिएक्शन सेपरेटली। ये बेटा इथाइल मिथाइल ईथर है और हमने इसको HI से ट्रीट कर दिया है। तो आयोडीन वहां लगता है जहां लेस क्राउडिंग होती है, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, ना मिथाइल का ना इथाइल का। जब कार्बोकेटाइन स्टेबल ना हो तो रिएक्शन SN2 को फॉलो करता है, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, फिर तो 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। एंड इन द SN2 रिएक्शन क्राउडिंग इज द की फैक्टर। एज ए रिजल्ट आप आयोडीन वहां अटैच करोगे जहां लेस क्राउडिंग है। कंपैरिजन हो रहा है ना, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल का। मैकेनिज्म ये है, मैकेनिज्म में हर बारी पहले H+ और लोन पेयर को आपने जोड़ देना है। H+ एंड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन एंड यू विल गेट प्रोटोनेटेड एल्कोहल फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आपके पास लोन पेयर और फिर ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। देन यू विल शो दी SN2 मैकेनिज्म, अटैक ऑफ आयोडाइड। आयोडाइड लेस क्राउडेड साइड से आएगा, इथाइल की तरफ नहीं आएगा, वरना डेल्टा पॉजिटिव तो इथाइल पे भी है। लेस क्राउडेड साइड से आपने आयोडीन लगा देना है और ये बॉन्ड को क्लीव करना है। ये नोट करो मैंने किस बॉन्ड को क्लीव किया। सो CH3I प्लस C2H5OH, ये आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट। सो मिथाइल आयोडाइड किस ऑप्शन में लिखा है? मिथाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल, इट इज रिटन इन डी ऑप्शन, ये लिखा हुआ है। डी ऑप्शन बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक था आयोडाइड का, वी कैन मेंशन हियर न्यूक्लियोफिलिक, SN2 हो रहा है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। क्लियर? SN1 SN2 एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़े थे, वो ईथर में भी यूज हो रहे हैं, एल्कोहल्स में भी यूज होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, फिर से HI का रिएक्शन है, फिर से ईथर का क्लीवेज है। अलग अलग सिचुएशन में आपको ईथर दिए जा रहे हैं। अब बेटा एक तरफ है मिथाइल और एक तरफ है आइसोप्रोपाइल। अब फिर से ये कार्बोकेटाइन अभी भी स्टेबल नहीं है। मिथाइल और आइसोप्रोपाइल हमारे को गिवन है। वी आर रिएक्टिंग इट विद H+, HI में से H+ का पहले अटैक होता है लोन पेयर की तरफ, क्योंकि H+ खुद ही अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये बना प्रोटोनेटेड ईथर, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। देन आयोडीन विल कम फ्रॉम लेस क्राउडेड साइड। स्टेरिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाना है, स्टेरिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट आप शो करोगे। आयोडीन को आपने कहां से अटैक कराना है? मिथाइल वाली साइड पे, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल होता तो पहले कार्बोकेटाइन बनता, वो स्टेबल नहीं है इसलिए SN2 होता है, इसलिए आयोडीन पहले अटैक करता है और आपके पास ये क्लीवेज होगा बॉन्ड का CH3I एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। दिस इज CH3 एट द टॉप एंड OH अटैच्ड, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये आपके प्रोडक्ट का नेम। अब ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में आयोडीन एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल चाहिए, वो आपके पास बेटा B ऑप्शन में है। दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एंड मिथाइल आयोडाइड, बोथ आर रिटन, B ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन और आंसर फिर से देख लो, B पार्ट इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट देखिए, अमंग द फॉलोइंग ईथर्स विच विल प्रोड्यूस मिथाइल एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड HI। तो ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कम से कम आपने 4-5 क्वेश्चंस देख लिए हैं। यू हैव टू प्रिपेयर मिथाइल एल्कोहल। अब हमें 4 ईथर दिए, मिथाइल एल्कोहल किस में आएगा? ए ऑप्शन में बेटा टर्शरी ब्यूटाइल एंड मिथाइल आर गिवन। ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ है मिथाइल ग्रुप, हमने इसको HI से ट्रीट करना है। अब मैकेनिज्म लेस क्राउडेड साइड वाला नहीं है, क्योंकि अब एक 3 डिग्री आ रहा है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। 3 डिग्री के अंदर तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। तो मैकेनिज्म जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले H+ का अटैक हम शो करेंगे, CH3 at the top and 1 CH3 at the bottom. OCH3 H+ will come,
वो H प्लस को आप इसके साथ जोड़ दोगे जो लोन पेयर है, फिर आपको मिलेगा CH3 एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक लोन पेयर से बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन ने, एक लोन पेयर अभी भी है। अब बेटा ये क्लीवेज करनी है, ये वाली क्लीवेज से हम शो कर देंगे कि कार्बोकेटाइन सेपरेट हो रहा है। ये SN1 मैकेनिज्म बनता है, 3 डिग्री में SN1 होता है। अदरवाइज अगर 3 डिग्री ना हो तो आप आयोडाइड वहां लगाते हो जहां कम क्राउडिंग है। अब कम क्राउडिंग वाले पे आयोडाइड नहीं लग रहा, अब आयोडाइड वहां लग रहा है जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तो कार्बोकेटाइन तो स्टेबल है 3 डिग्री का, एंड मिथाइल अल्कोहल सेपरेटेड। नाउ देयर इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ आयोडाइड। स्लो स्टेप से सारे डिसीजन होते हैं, स्लो स्टेप वही होता है जहां कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, तो अब आप आयोडीन को अटैच करिए on the delta positive and the product is tertiary butyl iodide plus मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल आ गया ए ऑप्शन के अंदर, ए में ही हमें मिथाइल अल्कोहल मिल रहा है। बी ऑप्शन को देखते हैं, बी में बेटा कार्बोकेटाइन 3 डिग्री नहीं है, बी में SN2 फॉलो होगा। अगर SN2 फॉलो होता है तो फिर लेस क्राउडेड पे अटैक होता है, तो बी में मिथाइल आयोडाइड आएगा ना कि मिथाइल अल्कोहल। सी को देखिए, सी में भी वही है, सी में तो 1 डिग्री है दोनों तरफ, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो SN1 करना है, वरना SN2 करना है। आ जाइए डी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन में ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज ऑल्सो नॉट स्टेबल, सो SN2। जहां जहां SN2 है वहां पे आपको मिथाइल आयोडाइड मिलेगा, जहां SN1 है वहां टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड मिलेगा, ये डिफरेंस है। सो क्लीवेज ऑफ ईथर बोर्ड एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा कुछ क्वेश्चन एल्कोहल्स के ऊपर है, ईथर के बाद फ्यू क्वेश्चंस ऑन एल्कोहल, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। आपको ग्लूकोज से अल्कोहल बनाना है, तो ग्लूकोज का रिएक्शन कुछ ऐसा करना है कि अल्टीमेटली अल्कोहल बन जाए। तो क्या करेंगे, ग्लूकोज प्लस वाटर विल गिव यू ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। सो देखो बेटा, ग्लूकोज से पहले सुक्रोज का रिएक्शन होता है, ग्लूकोज को हटा दीजिए, पहले सुक्रोज से स्टार्ट करते हैं फिर ग्लूकोज बनेगा। पूरा रिएक्शन लर्न करेंगे। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये रिएक्शन इन्वर्टेज की प्रेजेंस में होता है। एंजाइम का नाम याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा। ग्लूकोज सुक्रोज 2 चीजों से बनता है, एक फ्रक्टोज से और ग्लूकोज से। तो हमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया पहले। सुक्रोज शुगर है, रूटीन में हम जो शुगर खाते हैं वो सुक्रोज है। फिर ग्लूकोज प्लस जाइमेज एंजाइम। ग्लूकोज का रिएक्शन अब किस एंजाइम से हो रहा है, जाइमेज के साथ, तो प्रोडक्ट आएगा इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन थे, आपके पास 4 + 2 दो सेट बन गए। ग्लूकोज को ब्रेक करने वाला कौन सा एंजाइम है, जाइमेज। बट कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सुक्रोज को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा, फिर आंसर इन्वर्टेज है। एनीवे हमारे क्वेश्चन ने तो हमें सुक्रोज नहीं दिया था, हमें तो ग्लूकोज दिया था ना। ये देखो, ग्लूकोज वॉज गिवन, इथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट चाहिए, तो आंसर इज जाइमेज। जाइमेज मीन्स डी ऑप्शन। क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट readily be dehydrated in acidic condition? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करना है। अल्कोहल का अगर एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेशन होता है तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। आपने अल्कोहल के चैप्टर में सीखा था, कार्बोकेटाइन अल्टीमेटली एल्कीन में चेंज हो जाता है बाय द लॉस ऑफ H+। तो पहले स्टेप में आपका कैटालिस्ट यूज हुआ, वो लास्ट स्टेप में रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें ABCD कुछ अल्कोहल्स दे रखे हैं, किसके अंदर आपको मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ए ऑप्शन में बेटा है कीटो ग्रुप अटैच्ड। ए ऑप्शन का मैं प्रोडक्ट अगर लिखूं, कीटो इज अटैच्ड एट दिस पोजीशन।
ठीक है, अब हम इसका डिहाइड्रेशन कर देंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड। एक मिनट, स्ट्रक्चर फिर से बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर था ना। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और आप ये प्रोडक्ट पे पहुंच जाओगे। ये आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट। कैन आई से प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन क्या होती है? डबल, सिंगल, डबल। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये कीटोन के नेक्स्ट पोजीशन पे अनसैचुरेशन है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन है ना, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस। सो इट इज स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन। तो ए ऑप्शन में इस तरह से प्रोडक्ट बना। अगर बी ऑप्शन होगी तो फिर वो बी का कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा। ये देखो, बी में जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना, बी का ये स्ट्रक्चर गिवन है आपको, यहां OH लगाया हुआ है, तो बी के अंदर आपके पास ये कार्बोकेटाइन बनेगा। सो पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कीटो इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल डीस्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से होती है, ना कि विड्रॉइंग से। विड्रॉइंग से तो और भी अनस्टेबल बनेगा। सी ऑप्शन देखते हैं। सी के अंदर एक एल्कोहल है, टोटल 5 कार्बन है। सो आप 5 कार्बन लो, मतलब पेंटेनोल दिया है आपको, 2 पेंटेनोल। तो यहां से डिहाइड्रेशन करेंगे अगर, तो एल्कीन बनेगी, प्रोडक्ट तो आएगा। बट क्वेश्चन ने बोला था कि फास्टेस्ट रेट पे कौन करेगा, मोस्ट रेडिली कौन करेगा। सी के अंदर एल्कीन बन रही है बट उसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। एज अ रिजल्ट वो उतना स्टेबल नहीं है, तो डी के अंदर भी कॉन्जुगेशन नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो डी का प्रोडक्ट हम बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6। डी में 6 कार्बन हैं। डी का ये स्ट्रक्चर है, टोटल 6 कार्बन, 3 4 5 6। यहाँ कीटो लगा रखा है, यहाँ OH लगा रखा है। अगर आप ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन का करते हो तो प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, ये डबल बॉन्ड नॉट कॉन्जुगेटेड। जब जब सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं होता, रेजोनेंस नहीं हो सकती। ये sp3 कार्बन बीच में आ रहा है, sp3 कार्बन सेंटर में नहीं आना चाहिए। sp3 से स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं रहता, तो जब प्लेनर नहीं रहेगा तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। सो गॉट इट। ए ऑप्शन में स्टेबिलिटी हाई है प्रोडक्ट की। हाई प्रोडक्ट स्टेबिलिटी मींस इट विल बी फॉर्म्ड एट ए फास्टर रेट। ये आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन और स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 19। इन द गिवन रिएक्शन बिलो फाइंड आउट एक्स। आपका मॉलिक्यूल है बेटा नियोपेंटाइल एल्कोहल। नियोपेंटाइल एल्कोहल में एक क्वाटर्नरी कार्बन है। क्वाटर्नरी कार्बन होता है द कार्बन विच इज अटैच टू 4 अदर कार्बन। ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने नियोपेंटाइल एल्कोहल का। अब यहां पे क्या करना है? सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। जब जब एल्कोहल का रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड से तो कार्बोकेटाइन बनेगा। आप लॉस ऑफ वाटर कर दो और कार्बोकेटाइन दिखा दो। ये स्ट्रक्चर, दिस कार्बोकेटायन इज प्रोड्यूस्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो स्टेबल नहीं होते कभी भी। मिथाइल शिफ्ट करिए, मिथाइल शिफ्ट से पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री की जगह 3 डिग्री पे आ जाएगा। शिफ्ट्स तभी होती हैं जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अचीव होती है। सो वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर एंड मिथाइल जाके कॉर्नर पे लग गया। दिस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कार्बोकेटाइन को नीचे मेंशन करेंगे हम। इट इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो 3 डिग्री तो स्टेबल होता है। अब क्या करना है? ये स्टेप में कार्बोकेटाइन बन गया। अब लॉस ऑफ H+। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे लॉस ऑफ H+। ये वाली पोजीशन से H+ निकालो जहां टिक किया है, क्योंकि वैसा करने से डबल बॉन्ड सेंटर में आएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कॉर्नर पे स्टेबल नहीं होता, डबल बॉन्ड सेंटर में स्टेबल होता है। ये ZF एल्कीन है, तो पॉजिटिव चार्ज ये कैसे हो रहा है? H+ के जाने से एल्कीन कैसे आती है, अगर वो देखना है तो बेटा ये बॉन्ड को खोलना पड़ेगा। ये देखो, हमारे पास ये था ना CH2, मैंने एक H को अलग से लिख के दिखा दिया।
अब हम H प्लस बाहर कर देंगे और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे बॉन्ड के अंदर, उन्होंने यहां डबल बॉन्ड क्रिएट किया। डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। ये आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका नाम देते हैं हम इसको। अगर मुझे नेम देना है तो ये आपका 4 कार्बन का सीक्वेंस, सेकंड पे मिथाइल लगा है, इट इज 2 मिथाइल ब्यूट 2ईन। लेट्स कम टू द ऑप्शंस। 2 मिथाइल ब्यूट 2ईन मींस सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है, सी पार्ट, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 20। So question 20, last question. A compound with formula C4H10O3 is converted by the action of acetyl chloride to a compound. ये आपका ओरिजिनल कंपाउंड था, उसका रिएक्शन करते हैं विद एसिटाइल क्लोराइड, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो जाता है। तो ओरिजिनल कंपाउंड हैज हाउ मेनी OH ग्रुप्स। देखो बेटा, रिएक्शन ये है कि एल्कोहल है ना हमारा, उसमें एक OH है, 2 या 3, वो ढूंढना है। उसको एसिटाइल क्लोराइड से ट्रीट करेंगे। जब आप ये रिएक्शन करते हो, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, HCl निकल जाएगा और एस्टर आपका प्रोडक्ट, एस्टर प्लस HCl इज प्रोड्यूस्ड। अब कितने एसिटाइल ग्रुप अंदर आएंगे वो डिपेंड करता है कितने OH अंदर थे। एक OH है तो एक एसिटाइल आएगा। ग्लूकोज में तो 5 OH होते हैं, तो पेंटा एसीटेट बनाता है ग्लूकोज। तो अब हम पहले मोलर मास निकालते हैं C4H10O3 का। आपका ओरिजिनल कंपाउंड था C4H10O3, हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, 4 कार्बन कैसे जोड़ने हैं कुछ नहीं पता, बट फॉर्मूले से हम मोलर मास निकाल देंगे। 12 इंटू 4 एंड 1 इंटू 10 एंड 16 इंटू 3। मैंने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन सबका मास ले लिया। ये बेटा है 48, ये है 10 और ये भी 48, तो ये आ रहा है 106 इसका मोलर मास। उसके बाद ओरिजिनल कंपाउंड था 106, फिर नया मास आ रहा है 190। सो आफ्टर एसिटाइलेशन जो एस्टर बनता है उसका मास हमें क्वेश्चन ने 190 दिया। देखते हैं क्या डिफरेंस है। 190 माइनस 106, ये बेटा 84 का डिफरेंस आ गया। 84 यूनिट्स मास बढ़ गया है। और एक एसिटाइल ग्रुप कितना होता है? एक एसिटाइल का मास है 2 कार्बन का 24, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 3। एक एसिटाइल का मास है 43 यूनिट्स। और बेटा जब एसिटाइल अंदर जाएगा तो H भी तो बाहर आएगा। एसिटाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय 1 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन अंदर आएगी और एसिटाइल बाहर जाएगा, तो 43 में से 1 माइनस कर दो। 43 माइनस 1 मतलब 42 यूनिट्स का इंक्रीज होता है जब ये रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? ये हमने ऊपर लिखा है कि जब अल्कोहल एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो 43 की जगह 42 यूनिट्स लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो बाहर जाती है ना। अगर एसिटाइल आके मास बढ़ाता है 43, तो एक हाइड्रोजन का लॉस हुआ, मतलब इंक्रीज कितना है? 42 यूनिट्स। 42 यूनिट्स इंक्रीज इन मास। तो अब हमने तो अभी अभी कैलकुलेट किया था कि हमारे क्वेश्चन में मास 84 यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस 84 का था। सो 84 अपॉन 42 कर दीजिए। 2 यूनिट्स, 2 OH ग्रुप आपके रिएक्टेंट में प्रेजेंट थे, तभी तो आपके रिएक्शन करने के बाद 84 यूनिट्स का मास इंक्रीज हो रहा है। 2 OH ग्रुप्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या आंसर बनता है? बी ऑप्शन इज योर आंसर। गॉट इट? सो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकता है, जिसमें मोलर मास के इंक्रीज से पता करना होता है कि कितने OH हैं। इसी तरह बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर भी हमारे सिलेबस में आएगा, वहां आपको दिखेगा ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप हैं, तो वो पेंटा एसीटेट बनाता है, राइट। तो हमारे रिएक्टेंट में कितने OH हैं वो पता करने के लिए हम अपने रिएक्टेंट को एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं। सो बेटा क्या क्या आपने सीख लिया चैप्टर के अंदर? ईथर वाले पार्ट में ईथर का प्रेपरेशन, विलियमसन सिंथेसिस मेन रिएक्शन था। विलियमसन सिंथेसिस से सारे ईथर नहीं बनते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्वेश्चंस के थ्रू आपने देखा।
और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने से ईथर बनता है, बट वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। अगर 413 केल्विन नहीं देते हैं, हाई टेम्परेचर कर दिया तो एल्कीन बन जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ईथर आपको प्रिपेयर करना है तो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड भी ऐड हो सकता है। एंड ईथर के अंदर HI क्लीवेज मेन रिएक्शन था। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम है। ईथर H लूज नहीं कर सकता, एसिडिक नहीं होता है, जबकि फिनोल्स एसिडिक थे। फिनोल का तो मेन फीचर था एसिडिक इन नेचर, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट द लेक्चर. Hope you are enjoying the benefits of these lectures, and make sure you subscribe to the channel so that you can get more videos that will be helpful. Okay, thank you and bye bye.